بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول ڈارک کلب احمد کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ فریدی کا جملہ بے حد خوبصورت تھا۔ جناب، ہم نے تو آج تک آپ کی جنس پر شک نہیں کیا، ورنہ فریدی کے مقابلے میں فریدی تو واضح ہے، عمران نے جوابی چوٹ کرتے ہوئے کہا، اور اس بار کھلکھلا کر ہنسنے کی باری فریدی کی تھی۔ اچھا، آؤ میرے ساتھ، کوٹھی میں چل کر بات کریں گے، کرنل فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مگر میں نے تو ابھی بیمہ نہیں کرایا، عمران نے بری طرح خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ بیمہ؟ بیمے کا یہاں کیا تعلق؟ کرنل فریدی نے حیران ہو کر پوچھا۔ جناب، بغیر بیمے کے مر جانا ایسے ہے جیسے بیمہ کمپنی کو جائیداد تحفے میں دے دی جائے۔ آدمی زندہ تو بھوکا مرے اور سچ مچ مر جائے تو کم از کم مزار تو خوبصورت بن جائے گا بیمہ کے کلیم کی رقم سے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوہ، اتنی بزدلی بھی اچھی نہیں، میں تو یہاں پبلک جگہوں پر گھوم رہا ہوں اور تم کوٹھی میں جاتے ہوئے ڈرتے ہو، کرنل فریدی نے کہا۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ اتنی تو نہیں، لیکن تھوڑی بہت اچھی ہوتی ہے، بھلا کتنی؟ عمران نے کہا۔ تم آؤ پھر بتاؤں گا، کرنل فریدی نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ مگر میرا سامان، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ وہ تم سے پہلے ہی کوٹھی پہنچ گیا ہے، فکر نہ کرو، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کار میں بیٹھے کوٹھی کی طرف چل پڑے تھے۔ ہاں، اب بتاؤ کیسے آنا ہوا، کرنل فریدی نے کار چلاتے ہوئے کہا۔ کرنل صاحب کیا بتاؤں، آج کل فارغ تھا، میں نے سوچا کہ اپنی خالہ زاد سے جا کے کچھ رقم ایٹ لاؤں، لیکن وہ تو الٹا مجھ سے بھیک منگوانے پر تیار ہو گیا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو تم بتانا نہیں چاہتے؟ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، لیکن میرے ہوتے ہوئے تم ہوٹل میں نہیں رہ سکتے، کرنل فریدی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اور آپ کے بعد تو میں ہوٹل جا سکتا ہوں، عمران نے کہا، اور فریدی یک لخت مڑ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ تو یہ بات ہے، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، لیکن تمہاری ہمدردی کا بے حد شکریہ، میں خود ہی ان سے نمٹ لوں گا۔ کرنل فریدی ان حقیر چوہوں کے ہاتھوں سے نہیں مر سکتا۔ توبہ توبہ، آپ کے منہ میں خاک، اوہ سوری، کیا کہتے ہیں، میرے منہ میں گھی شکر، ارے یہ محاورے ہمیشہ ہی غلط ہو جاتے ہیں۔ بہرحال سوچ لوں، عمران نے آنکھیں بند کر لیں جیسے صحیح محاورہ سوچ رہا ہو۔ سنو عمران، ان لوگوں نے کرنل فریدی کو چیلنج کر کے اپنی موت کو آواز دی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وقتی طور پر مجھے دھوکہ دینے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور انہوں نے وائٹ فاکس کا بھی خاتمہ کر دیا ہے، لیکن میں انہیں پاتال سے بھی گھسیٹ نکالوں گا اور پھر یہ میرے ہاتھوں کتے کی موت مریں گے۔ کرنل فریدی کا لہجہ بے حد سخت تھا اور اسی لمحے عمران چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ وقتی دھوکے سے کیا مطلب؟ عمران کے لہجے میں حیرت تھی، اور فریدی نے اسے حمید کے اغوا سے لے کر کوٹھی میں ڈاکہ اور نقشہ چوری ہونے تک کی تمام تفصیل بتا دی۔ اوہ، بڑی خوبصورت پلاننگ کی ہے انہوں نے، اس کا مطلب ہے خاصے ذہین لوگ ہیں۔ فریدی صاحب، آپ نے خفیہ ہیڈ کوارٹر کا نقشہ دیکھ لیا ہے، تو جیوش آرگنائزیشن اس وقت تک آپ کا پیچھا نہ چھوڑے گی جب تک وہ آپ کو موت کے گھاٹ نہ اتار دے۔ یہ ان کا ایک ایسا اصول ہے جس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ ان کے چاہے سینکڑوں کارکن مار ڈالیں، لیکن وہ آپ کو نہ چھوڑیں گے۔ میں نے آپ کا فون ملتے ہی کراس ورلڈ آرگنائزیشن کے سیکریٹری سے بات کی تھی۔ یہ تنظیم بھی یہودیوں کی ہے، لیکن ان کے سیکریٹری سے میری پرانی دوستی ہے۔ اس نے یہودی ہونے کے باوجود مجھے ڈارک کلب اور جوش آرگنائزیشن کے متعلق تفصیلات بتائی ہیں۔ ڈارک کلب پیشہ ور قاتلوں کی تنظیم ہے، لیکن یہ جوش آرگنائزیشن کی ذیلی تنظیم بھی ہے۔ اس کا چیف باس ایک گنجے سر اور درشت چہرے والا نامی گرامی قاتل ہے جس کا نام کرافٹ ہے۔ اس گروپ میں 2 لڑکیاں اور 4 مرد شامل ہیں۔ کرافٹ ٹھنڈے مزاج کا قاتل ہے اور انتہائی ذہانت سے جال پھینکنے کا عادی ہے۔ اس گروپ میں شامل 2 عورتوں کے نام سمکا اور شہری ہے۔ دونوں انتہائی خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں ہیں، لیکن انتہائی بے رحم اور شفاف دل کی مالک ہیں۔ دل کو ہاتھوں میں لے کر یوں مسلتی ہیں جیسے اس کا جوس نکال رہی ہوں۔ عمران اچھی خاصی بات کرتے کرتے اچانک پٹری سے اتر گیا۔ گڈ،
तुम ने तो अच्छी खासी मालूमात हासिल कर ली हैं। वेरी गुड। मैंने भी क्रॉस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और स्टार वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से बात की थी, लेकिन इन्होंने मुझे टरका दिया था। बहरहाल बेहद शुक्रिया, कर्नल फरीदी ने कार कोठी के गेट में मुड़ते हुए कहा। मालूमात हासिल करने के लिए खालाजात बनना पड़ता है फरीदी साहब, बड़ा मुश्किल काम है। कभी कासिम का खालाजात बनकर देखिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फरीदी हंस पड़ा। कार पोर्च में रुक चुकी थी और फिर वो दोनों ही बाहर निकल आए। बरामदे में कैप्टन हमीद खड़ा बड़ी कीनातोज निगाहों से इमरान को देख रहा था। उसे शायद पहले ही इमरान के सामान की आमद की इत्तला मिल चुकी थी। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। इमरान ने हमीद को देखते ही जोर जोर से वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। बला तो कार में आई है, हमीद ने दांत पीसते हुए कहा। अच्छा, कमाल है। अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई। फरीदी साहब, आप कैप्टन साहब के लिए बला बन चुके हैं। अरे माफ कर दीजिए, बेचारा आशिक मिजाज बेजरर सा आदमी है, दो चार बातें करके दिल पेशावरी कर लेता है। इमरान ने बात फरीदी पर डालते हुए कहा। हमीद, नंबर 11 से मालूम करो कि किसी ने ताकुब तो नहीं किया। कर्नल फरीदी ने हमीद से मुखातिब होकर सख्त लहजे में कहा और खुद इमरान का हाथ पकड़े ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ता चला गया। हाँ, अब बताओ, इन दो औरतों के अलावा और कौन कौन से लोग हैं इस क्लब में? 4 मर्द हैं, बार्टन, जैकफी, जाकी और साम। सिर्फ साम के मुतालिक मालूम हुआ है कि वो दुबला पतला और लंबे कद का है, बाकी तीनों भारी जिस्म के हैं। इमरान ने भी संजीदगी से जवाब देते हुए कहा। ठीक है, इसका मतलब है कि नक्शा उड़ाने में ग्रुप के असल आदमियों ने काम किया है, जबकि हमीद को अगवा करने के लिए इन्होंने मकामी गुंडों का सहारा लिया है, और ये गुंडे भी वो गोवा से लेकर आए थे। फरीदी ने सर हिलाते हुए कहा। कैप्टन हमीद की किस्मत अच्छी थी कि मकामी गुंडों की वजह से इसकी जान बच गई, और शायद इसी गलती की बिना पर वो मकामी गुंडे भी मारे गए हैं। जाहिर है हमीद ने आपको इनके हुलिये बता दिए होंगे। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। मैं एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, तुमने इन लोगों के मुतालिक तफसीलात बताकर मुझे इनके ज्यादा करीब कर दिया है। फरीदी ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तफसील मैंने अपने मकसद के लिए हासिल की थी, और आप बार बार ये मेरे यहाँ आने का मकसद पूछ रहे थे। तो असल बात यह है कि आपका फोन मिलने के बाद मुझे ख्याल आ गया कि अगर ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशन यहाँ काम कर सकती है तो फिर यकीनन पाकिस्तान में भी इनका कोई ना कोई ग्रुप काम कर रहा होगा। मैंने सोचा कि डार्क क्लब में किसी को पकड़कर इसके जरिए इस ग्रुप का पता चलाऊंगा, लेकिन अब आपकी बताई हुई तफसील के बाद मामला ज्यादा गंभीर हो गया है। ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी तंजीम है, डार्क क्लब जैसी बेशुमार तंजीमें इसके अंडर काम करती हैं। मुझे नक्शे के मुतालिक इल्म ना था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि आप अब एक यकीनी खतरे में फंस चुके हैं। आप ज्यादा से ज्यादा डार्क क्लब का खात्मा कर देंगे तो वो और तंजीम भेज देंगे। आप किस किस को खत्म करेंगे, और फिर अंधेरे कोने से चलने वाली कोई ना कोई गोली बहरहाल आपकी तरफ जरूर आएगी। इमरान ने इंतहाई संजीदा होते हुए कहा। तो तुम्हारा क्या मकसद है? मैं इनसे छुपकर किसी तहखाने में जिंदगी गुजार लूं या खुदकुशी कर लूं? कर्नल फरीदी ने झंझलाए हुए लहजे में कहा। इसका अब मेरी नजर में सिर्फ एक ही हल है। नक्शा यकीनन आपके जहन में मौजूद होगा। इस नक्शे की मदद से आप इनके हेडक्वार्टर को ट्रेस करके इस पर हमला कर दें, वो जड़ ही काट दें जिसकी शाखें और पत्ते आपकी तरफ लपक रहे हैं। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इसमें कई मसले सामने आते हैं। ये मिशन बहरहाल सरकारी नहीं हो सकता, मेरा प्राइवेट होगा, इसलिए मैं ब्लैक फोर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि मैं यहाँ से छुट्टी लूँ और खुद अकेला या कैप्टन हमीद को साथ लेकर इन पर चढ़ दौड़ूं। सरकारी नहीं तो सरकारी बनाया जा सकता है, या दूसरी सूरत ये भी हो सकता है कि जिस तरह आप और कैप्टन हमीद छुट्टी लेंगे, इस तरह आपकी ब्लैक फोर्स के भी 10-12 मेंबर छुट्टी ले सकते हैं। मैं और मेरी टीम बहरहाल हाजिर है। इमरान ने कहा। ओह, ऐसी बात नहीं, ये मेरा मसला है, मैं इनसे निपट लूंगा। तुम्हारा बेहद शुक्रिया, फरीदी ने चौंकते हुए जवाब दिया। ये आपका जाती मसला नहीं है, दुनिया भर में फैले हुए सारे मुसलमानों का मसला है। फरीदी साहब, ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशन की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि इनके हेडक्वार्टर का किसी को इल्म नहीं होता, लेकिन अब इसका इल्म होने के बाद इस खौफनाक अफरीद का खात्मा फर्ज हो गया है। ये ऐसी तंजीम है जो किसी भी वक्त पूरे दुनिया के मुसलमानों को भेड़ बकरियों की तरह ज़बाह करने से भी बाज नहीं रहेगी। इमरान के लहजे में बेहद संजीदगी नुमाया थी। लेकिन बहरहाल एक मजहबी मसला सरकारी मसला नहीं बन सकता, फरीदी ने कहा। आपकी हुकूमत के लिए ना बन सकता हो, लेकिन मेरी हुकूमत के लिए तो बन सकता है, बल्कि यूं समझिए कि बन चुका है। अगर हम शाकिर सराफ के कहने पर मासूम फलस्तीनियों के कत्ल आम का
इंतकाम लेने के लिए इसराइल में तबाही फैला सकते हैं, तो क्या पूरी दुनिया में फैले हुए अरबों मुसलमानों को इन यहूदी भेड़ियों से बचाने के लिए काम नहीं कर सकते? इमरान का लहजा चट्टान की तरह सख्त था। बहरहाल इस बात पर गौर करेंगे। फिलहाल तो डार्क क्लब का मसला है, इसने मेरा गोरखा चौकीदार कत्ल किया है, मैं इसे अब जिंदा तो बहरहाल नहीं छोड़ सकता। कर्नल फरीदी ने बात को टालते हुए कहा, फिर ऐसा करें कि आप अपने जहन में मौजूद नक्शा कागज पर बनाकर इसी को एक कॉपी मुझे दे दें। आप यहाँ डार्क क्लब से निपटिए, जब तक मैं इनके हेडक्वार्टर को ट्रेस करने का काम आगे बढ़ाऊंगा। जब आप डार्क क्लब का खात्मा कर लेंगे तो अगर चाहें तो मेरे साथ शामिल हो जाएं, चाहें तो यहाँ बैठे सुन लिया करें। इमरान ने जवाब दिया और फिर से पहले कि कर्नल फरीदी इमरान की बात का कोई जवाब देता, पास पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। कर्नल फरीदी ने चौंक कर टेलीफोन की तरफ देखा और दूसरे लम्हे रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल फरीदी ने सिर्फ यस कहने पर ही इक्तफा किया। कर्नल फरीदी साहब से बात करें, मैं राजश्री बोल रही हूँ, मिसेस बालिम कपूर, प्लीज जल्दी करें। दूसरी तरफ से एक औरत की इंतहाई घबराई हुई आवाज सुनाई दी। ओ भाभी, आप हैं? मैं फरीदी बोल रहा हूँ, खैरियत है? कर्नल फरीदी ने चौंकते हुए कहा। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात थे। फरीदी साहब, खुदा के लिए जल्दी मेरे पास आइए, मेरे बेटे रामश्री को अगवा कर लिया गया है। वो 50 लाख रुपए 24 घंटों के अंदर मांग रहे हैं, और साथ ही इन्होंने धमकी दी है कि अगर पुलिस या सीक्रेट सर्विस या किसी दूसरे को इतला दी गई तो रामश्री का गला काट दिया जाएगा। प्लीज खुदा के लिए मेरे रामश्री को बचाइए, वो तो नन्हा सा खिलौना है, वो तो इन जालिमों के हाथों टूट जाएगा, प्लीज। दूसरी तरफ से इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा गया, और इसके साथ ही रोने और सिसकियां लेने की आवाजें शुरू हो गईं। बालम कपूर साहब कहाँ हैं और ये वाकया किस वक्त हुआ है? फरीदी ने संजीदा लहजे में कहा। वो मौजूद हैं, इन्हीं के कहने पर मैंने आपको फोन किया है। वो डर रहे हैं कि कहीं टेप ना हो रहा हो। टेप हो रहा होगा तो आपका फोन भी तो हो रहा होगा, आप मेरी इनसे बात करवाएं। हेलो कर्नल, प्लीज जल्दी आ जाओ, हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, राजश्री तो संभाली नहीं जा रही, प्लीज। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज उभरी और कर्नल फरीदी की पेशानी पर मौजूद चिकने साफ हो गईं। ये वाकया कब हुआ है? फरीदी ने कहा। प्लीज यहीं आ जाओ कोठी, तफसील से बात होगी, प्लीज जल्दी करो, मेरा जहन काम नहीं कर रहा। दूसरी तरफ से घबराए हुए लहजे में कहा गया। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, घबराए नहीं, भाभी को तसल्ली दें, रामश्री मिल जाएगा जिंदा सलामत, कर्नल फरीदी ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये नया मसला खड़ा हो गया है, बहरहाल मैं देखता हूँ। कर्नल फरीदी ने कुर्सी से उठते हुए कहा, तब तक मुझे इजाजत, मैं जरा खाला जात को मजीद निचोड़ कर देखूं। अच्छा भला काम हो रहा था कि आपके आने की वजह से वो बिदक गया। इमरान ने भी उठते हुए कहा, ठीक है आओ, जहाँ तुम कहोगे मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। क्या कोई कार उधार नहीं मिल सकती? दरअसल कुछ रकम की, और आप जानते हैं कि टैक्सी का मीटर वर्ल्ड बेस्ट चैंपियन होता है। इमरान ने झिझकते हुए कहा, ओह हाँ सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा। हमीद, कर्नल फरीदी ने माजरत भरे लहजे में कहा, और इसके साथ ही इसने ऊंची आवाज में हमीद को बुलाया। यस। दूसरे लम्हे हमीद दरवाजे पर नमदार हुआ। वो यकीनन साथ वाले कमरे में मौजूद था, और शायद इमरान की वजह से वो पहले अंदर ना आया था। गैराज से डॉटसन निकाल लाओ, जल्दी करो। सॉरी, मैं इसका ड्राइवर नहीं हूँ, इसे खुद भेज दें, निकाल लेगा। कैप्टन हमीद ने काट खाने वाले लहजे में कहा। वो इनकी गुफ्तगू तो सुन ही रहा था, इसलिए उसे मालूम था कि कार इमरान के लिए मंगवाई जा रही है। हमीद, कर्नल फरीदी ने इंतहाई वसीले और सख्त लहजे में कहा। उसे शायद हमीद के इस गैर मुतवक्की जवाब पर गुस्सा आ गया था। रहने दें फरीदी साहब, रहने दें, ख्वाह ड्राइविंग सीट को पार्क करवाना पड़ेगा, आप मुझे गैराज बता दें, मैं खुद ही निकाल लूंगा। इमरान ने कहा, आओ मेरे साथ। और हमीद, तुमने कोठी से बाहर नहीं जाना, समझे, वरना। कर्नल फरीदी ने इंतहाई कड़क लहजे में इमरान के बाद हमीद से मुखातिब होकर कहा, और हमीद कंधे उचकाता हुआ बाहर चला गया। कर्नल फरीदी इमरान के हमरा लेकर कोठी के उत्तर में बने हुए गैराजों में गया, और फिर चंद लम्हों बाद नीले रंग की एक डाटसन कार में इमरान बैठा कोठी से बाहर आ गया। कार की टंकी पेट्रोल से फुल थी, इसलिए इमरान के चेहरे पर इत्मीनान था। इमरान की कार के पीछे कर्नल फरीदी की कार भी बाहर आ गई, और फिर चौक तक वो दोनों आगे पीछे भागती रहीं। चौक से कर्नल फरीदी की कार दाईं तरफ मुड़ गई, जबकि इमरान की कार सीधी शहर की तरफ बढ़ती चली गई।